Well, so we are continuing with SHM, and the first thing we'll be doing, the first example of a simple harmonic motion we'll be doing is spring block system. ये एकदम फर्स्ट एग्जांपल दिए थे हम लोग, याद है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन बताए थे कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस, परफेक्टली स्मूथ सरफेस, और वहां पर हम लोगों के यहाँ पर एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्ट किया हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ब्लॉक का मास M है। सो हम लोग को मालूम है स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, जल्दी से बताओ। minus of K. Right. So acceleration should be minus K by M into x, because force is mass into acceleration. So if we compare this equation, of course, since K and M, give the heading spring block systems. Spring block systems. K and M are constants, therefore acceleration is proportional to negative of displacement. Hence the motion is SHM, simple harmonic motion. ठीक है, अब ये जो ऑसिलेट करेगा इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? How do we find out the time period of this oscillation? So हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे? Comparing equation 1 with A equal to minus Omega square. omega square y, omega square x, doesn't matter. Therefore omega square equal to কত? K by X. Right? তাহলে time period will be 2 pi by omega, which is 2 pi, क्या होगा यहाँ पर? 2 pi by मतलब root over of M by K. 2 by root over of m by k. So this will be the time period of oscillations, and obviously अगर frequency पूछा जाएगा of oscillations, so it will be 1 by 2 pi root over of k by m. ठीक है? This is the time period and frequency of oscillation for a spring block system. अब जो क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम्स में वो है कि अगर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक सिंगल स्प्रिंग से नहीं होके दो स्प्रिंग एक साथ कनेक्टेड होता है, तब क्या होगा? पहले जल्दी से ये बता लो, फिर बताएं क्विकली, फास्ट। So the next thing is combination of blocks. Combination of springs, not blocks but springs. So इसमें क्या क्या आएगा? The springs may be in series combination or parallel combination. जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, वैसे स्प्रिंग का भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन बन सकता है। कैसे समझ में आएगा कि स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। So first we are doing series combination. So in series combination, how do we understand that the springs are in series combination? एक के बाद एक लाइन पे लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है? वो दिखने में वैसा है, लेकिन you should not be thinking that way. Series combination तब होगा जब सारा ब्लॉक में, माने सारा स्प्रिंग में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स काम करेगा। When you stretch the block or change the position of the block, सारा स्प्रिंग में अगर सेम फोर्स काम करेगा, we call it series combination, ठीक है? So लिखो when same force acts in all the connected springs, ठीक है? So obviously diagrammatically देखने में लगेगा कि एक के बाद एक स्प्रिंग्स डायरेक्टली लगा हुआ है, जैसे यहाँ एक, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ एक, ऐसे। Obviously this is a series connection, ठीक है? So let's take two of them, ज्यादा लेंगे तो सिर्फ
साइज में बड़ा बनेगा और कुछ नहीं। से दिस इज K1 एंड दिस इज K2, दो स्प्रिंग्स लगा हुआ है, ठीक है। सो इफ आई मेक अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से x to this, then that displacement will stretch the first spring as well as the second spring. तो ऑब्वियसली दोनों स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट सेम होना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स। तो मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ, x1 हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ, then the total displacement will be the x, right? So when the system is stretched by x distance, let the extension in the springs be x1 and x2 respectively. ठीक है। So what did I say कि सीरीज कनेक्शन कब होगा? When what is same? फोर्स इज सेम। तो फर्स्ट वाला स्प्रिंग के लिए हम लोग F इक्वल टू माइनस K1 X1 लिख सकते हैं, yes. और सेकंड वाला स्प्रिंग के लिए क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू माइनस K2, राइट, और दोनों इक्वल कर देंगे। अब देखो X1 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस F बाई K1, और X2 को क्या लिख सकते हैं? माइनस F बाई K2। और हम लोग को बोला क्या हुआ है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो x है उसमें x1 और x2 है, मतलब x इक्वल टू x1 प्लस x2, राइट। अब मान लो हम लोग को ये पूरा ब्लॉक, पूरा स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग से सब्स्टिट्यूट करना है। आई वांट टू सब्स्टिट्यूट इट विथ व्हाट? सिंगल स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट k है। तो उसके लिए F will be equal to minus kx, right? So यहाँ पर x को हम लोग क्या बोल सकते हैं? F by minus k, right? So ये x का वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, x1 का वैल्यू minus F by k1 और x2 का वैल्यू F by k2। तो दोनों साइड से F कॉमन लेके we can cancel it off। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? अगर माइनस साइन माइनस F कॉमन लेते हैं, माइनस F कॉमन लेने से 1 by k बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 1 by k1 plus 1 by k2। So you can cancel off minus F from both sides। 1 by k equal to 1 by k1 plus 1 by k2। So सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स एक के बाद एक लगाने से क्या होता है? इफेक्टिव जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो घट जाता है, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीजेस, ठीक है। सो k का वैल्यू कितना निकलेगा? K1 K2 by K1 plus K2। तो मतलब क्या? मतलब जब हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे कॉम्बिनेशन का, ये पूरा कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड निकालने बोला जाएगा, तो हम लोग टाइम पीरियड क्या बोलेंगे? t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k। ये पढ़े थे ना वहां पर, तो वो k की जगह में हम लोगों को ये पूरा वैल्यू बिठाना होगा, मतलब दिस विल बी k1 k2 और ऊपर k1 प्लस k2 प्लस k2। ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन सीरीज कनेक्शन। समझ में आया? तो बेसिकली हाँ ये ऐसा इलेक्ट्रिक करंट भी किया था, पैरेलल था, राइट उसका ऑपोजिट में वो पैरेलल में था। हाँ राइट, इलेक्ट्रिक करंट में पैरेलल में 1 by r इक्वल टू 1 by r1 प्लस 1 by r2 था, ये सीरीज में 1 by k इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2। ठीक है, जल्दी से लिख लो फास्ट। See, now the next thing is parallel connection of springs। Effectively it looks like कि एक स्प्रिंग दूसरा स्प्रिंग से पैरेलली कनेक्टेड है, जैसे ऐसे एक स्प्रिंग है, ऐसे दूसरा स्प्रिंग है और सेम ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, K1 और K2। ठीक है, ये देख के समझ में आता है कि पैरेलल कनेक्शन है। लेकिन यहां पर क्या होता है, हाउ डू यू थियोरेटिकली या डेफिनेशन वाइज कैसे बोलेंगे कि वो पैरेलल कनेक्शन में है? व्हेन यू स्ट्रेच द ब्लॉक और चेंज द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, both the springs will have same extension। ठीक है, so when
extension on both the springs are same. Alright, that is what you call কি বলা হয় parallel connection. So if the extensions are same, then the forces in the springs is not necessarily same. They are independent springs, they are not connected to each other. जो force same হবে. So if they are independent springs, F1 will be minus kx1, k1x, and F2 will be minus k2x. और अगर हम लोगों को एक सिंगल स्प्रिंग से इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये दो स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग से सब्स्टिट्यूट करना है ऑफ मास ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो इसके लिए F इक्वल टू क्या होगा माइनस kx. अब ये अकेला जितना फोर्स लगाएगा ये दोनों मिलके उतना फोर्स लगा रहे हैं. सो व्हाट कैन वी से, देयरफॉर F is equal to F1 plus F2. तो minus kx is equal to minus kx1, sorry, k1x minus k2x. So we can take minus x common from both sides. It is k1 plus k2. So k equal to k1 plus k2. मतलब अगर स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है. दैट मींस इट बिकम्स मोर टफर. ঠিক আছে, সেজন্য দেখবে ওই যে যারা ফিটনেস সেন্টারে যারা জিম করে তারা যখন স্প্রিংস কোন স্প্রিং পুলিং কোন অ্যাকশন করে, हां वहां पर पैरेलल स्प्रिंग्स लगा हुआ रहता है. एंड देयर इज स्कोप फॉर पुटिंग लेस और मोर स्प्रिंग. लेस स्प्रिंग लगाएंगे तो विल हैव लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स. ज्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग लगा देंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा इसको स्ट्रेच करने के लिए. इज दैट क्लियर? सो कैन यू जस्ट लुक एट दिस एंड टेल मी whether this situation is a series connection or a parallel connection? तो इसमें तो कोई एक्सटेंशन नहीं है. नहीं, क्यों? कोई भी डायरेक्शन में तुम चेंज कर सकते हो उसका पोजीशन. स्प्रिंग है तो वो स्क्वीज करेगा या एक्सटेंड करेगा. सीरीज होगा. कॉम्बिनेशन भी नहीं है. कॉम्बिनेशन भी है. एक स्प्रिंग सोचो, एक स्प्रिंग से इसका काम होगा. हाँ, क्यों? दोनों स्प्रिंग तुम अगर इस एम का पोजीशन चेंज करोगे तो दोनों स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ मेंटेन रहेगा क्या? दोनों का ही चेंज होगा ना. एक का एक्सटेंशन होगा, दूसरे का कंप्रेशन होगा, वो अलग बात है. लेकिन दोनों का ही तो चेंज होगा पोजीशन. मतलब दोनों स्प्रिंग ही काम कर रहा है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में डालेंगे या पैरेलल में डालेंगे? क्या नो? सीरीज होगा सर. सीरीज होगा सर. पैरेलल सर नहीं, सर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है. पैरेलल जो तुम लोग बोल रहे हो वो तुम लोग सोच रहे हो क्या? नहीं सर, पैरेलल जितना इस तरफ जाएगा उतना ही तो वो एक्सटेंशन ऑफ राइट. फोर्सेस सेम नहीं है, एक्सटेंशन सेम है. देखो तुम अगर पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज करोगे तो जितना K1 एक्सटेंड करेगा उतना ही ना K2 कंप्रेस्ड होगा. पैरेलल. अगर K का M का पोजीशन चेंज करोगे तो जितना ये एक्सटेंड करेगा उतना ही ये कंप्रेस्ड होगा. सो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. सो डोंट गो बाय द लुक. लुक्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव. ठीक है, दिखने में लगता है सीरीज है, एक के बाद एक लगा हुआ है, लेकिन ये सीरीज नहीं है. सो बाय यू नीड टू गो बाय डेफिनेशन, नॉट बाय द लुक. ठीक है, डेफिनेशन क्या है? पैरेलल कब होता है? व्हेन एक्सटेंशन ऑन बोथ द स्प्रिंग्स आर सेम. एक यहां पर एक स्लैश लगा लो, लग दीजिए सर. एक्सटेंशन या कंप्रेशन. हां ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिख दो एक ही बात है. एक्सटेंशन और कंप्रेशन. ठीक है. सो दोनों स्प्रिंग में अगर सेम एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि वो पैरेलल कनेक्शन में है. इसीलिए हम ये पूछा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है सब लोगों को कि सर दो एक के बाद एक स्प्रिंग लगा हुआ है, देखिए वो सीरीज में होना चाहिए. नहीं, दोनों में सेम फोर्स कब काम करेगा? जब दोनों स्प्रिंग में सेम फोर्स कब काम करेगा? जब एक स्प्रिंग का एंड दूसरा स्प्रिंग का एंड से कनेक्टेड है. हाँ, तभी सेम फोर्स काम करेगा, इसलिए सीरीज हो रहा है. ठीक है, लेकिन अगर दोनों का एक्सटेंशन सेम हो रहा है, वो कोई भी सिचुएशन में लगा हुआ हो, डजंट मैटर, दे आर इन पैरेलल कनेक्शन.
समझ में आया? That's it. So सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का सम्स हम लोग का असाइनमेंट में बहुत सारा है, एक बार जल्दी से असाइनमेंट निकालो एवरीवन. Bring up the assignment quickly. सिंपल हमने का मोशन असाइनमेंट सभी पेज पे बस शेयर कर इसको. देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्विकली करेंगे, हाँ जल्दी से, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ. क्वेश्चन नंबर 22. Can you see the diagrams? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमें? पैरेलल है, क्या कनेक्शन है फर्स्ट वाला? पैरेलल है. पैरेलल कनेक्शन ऑब्वियसली, राइट? सो पैरेलल कनेक्शन है मतलब हम लोग क्या सीखते हैं, k इक्वल टू k1 प्लस k2 होगा. तो यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस में, राइट? सो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k किया ना अभी. सो दिस विल बी 2 पाई रूट ऑफ m by k1 plus k2. ठीक है? पार्ट 1 पैरेलल कनेक्शन. पार्ट 2 में देखो क्या दिया हुआ है, वही अभी क्या करवाए, अभी जो हम लोग डिस्कस किए, ऑब्वियसली दैट इज आल्सो पैरेलल. तो पैरेलल होगा तो सम आंसर एकदम सेम होगा. कनेक्शन, सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k1 plus k2. और थर्ड सीरीज में है, सो सीरीज में टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ m into k1 plus k2 by k1 k2, right? इरेज ले तो हाँ Yes, sir. हो गया. বোঝা গেছে কি করে সিরিজ প্যারালাল কানেকশন এন্ড স্প্রিংস দিয়ে কাজ করতে হবে? ক্লিयर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा बोलो तो, अगर एक स्प्रिंग लिया है उसको हम लोग बीच में से काट देते हैं, कहीं से भी काट देते हैं, तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, स्प्रिंग को काट देंगे तो वो इफेक्टिव लेंथ छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाने से स्प्रिंग कांस्टेंट ऑलवेज बढ़ जाता है. और स्प्रिंग अगर लंबा हो जाता है, कोई स्प्रिंग से सीरीज में कनेक्ट कर देता है, स्प्रिंग कांस्टेंट घट जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, हाँ गो.